Hi dear students, myself Pooja Patwar, and today we are going to do our grammar topic, that is tenses. So today we'll be learning the kinds of tenses and how they are used, what are the rules for making sentences using the tenses. So let us start. First of all, we'll be discussing about the types of tenses. So before I move to types of tenses, I would like to tell about the type of time. So as you know, we are having three types of time. So that is present, that is at present we are having. Second is past, that is gone, and third is the future, that is still to come. Okay, so these are the three types of time. Now we'll be talking about the types of tenses. So each time has been divided into four more parts. आगे उनको four parts में divide किया गया है. So they all are almost the same. The names are almost same. The some of the rules are only changing while framing the sentences in these tenses. So first of all, we are having simple present tense. Then we are having so we are having, first of all, we are having simple present tense, then we are having present continuous, then is present perfect, and present perfect continuous tense. In the same way, simple past tense, then past continuous, then past perfect tense, and past perfect continuous tense. Then we are having simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. So we are having 12 type of tenses. So we'll be talking in detail about them. Now let us start. So first of all, we'll be talking about the simple present tense. So simple present tense, when we talk about that, is so we'll be talking first of all how we'll acknowledge that it is simple present tense. So while framing the sentences, if we translate the Hindi sentence into English, in the last of Hindi sentence will be having ता है, ती है, ते हैं. Like वह काम करता है, वह सोता है, वह रोता है. So these are the this is the thing from where we can acknowledge that it is the simple present tense, and it is used for the things that are the universal truths or our habits that we usually do. Okay, like some of the activities that are done most of the time, like going to school, brushing your teeth, getting up from the bed, eating your lunch, or having your breakfast. So the things that are done every day, they come under the simple present tense. जो हमारी habits होती हैं, जो हमारा routine होता है, ठीक है, the things that happen every day, that all come in under the simple present tense. So let us start framing the sentences. Like assertive sentence, in the assertive sentence, while we are framing the sentence, first of all we'll be using the subject. So if I am saying Ram खाना खाता है, तो who is the subject? Ram. Okay, so khana khata, to khata is the verb, that is the action he is doing, so that is verb's first form. So I'll be writing eat. Then I am having s or es. Now singulars, with singulars we'll be using s or es with the verb's first form. Okay, and with plurals we'll be not using s और es, will be using only verbs फर्स्ट फॉर्म. ओके, एक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, और ज़्यादा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली. सिंगुलर ही शी इट, तो उन सभी के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस. एंड प्लूरल्स आई वी यू दे, एंड प्लूरल्स इनके साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली. ओके, सो नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट how to frame sentences. So subject, as I told, राम खाना खाता है, so राम. अब खाना एक्शन क्या है उसका? eat. So राम is singular, so we'll be using eats. Object is क्या करता है? Object is whatever action is done, और क्या किया गया और कहाँ पे किया गया, कैसे किया गया, या किस टाइम पे किया गया, दैट ऑल कम्स अंडर द ऑब्जेक्ट. सो राम ईट्स क्या करता है? वो खाना खाता है, सो फूड, or we can say meal. Okay, so this is how we frame the sentence in the simple present tense. Now negative sentence. What is meant by negative sentence?
नेगेटिव मीन्स दैट इज हैविंग नॉट। अब हमें पता है जब भी हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं वी ऑलवेज need a helping verb. Without helping verb, if we use not, the sentence remains incomplete, that is grammatically incorrect. So that is why in it we are not having any of the helping verb. So while framing the negative sentences we'll be using do or does. ओके, सो सिंगुलर्स के साथ हम सिंपल सेंटेंस असर्टिव में क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, यही जो एस और ई एस है ये डू के साथ चली गई, ठीक है। तो क्या बन गया, अब सिर्फ हम क्या करेंगे, अब एस और ई एस तो हट गई सिंगुलर्स वाली, अब यहाँ पे डू के साथ ये लग गई तो क्या बन गया, डज। डज बन गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होएगी, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। तो क्या हुआ, सिंगुलर जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं हम उसमें क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज करते हैं। नेगेटिव जहाँ पे नॉट आता है हम क्या करेंगे, डू के साथ ये वाली एस और एस लगा देंगे और वर्ब जो है वो अकेली लगेगी। गॉट इट। जब डू या डज लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, उसके साथ एस और एस को यूज नहीं किया जाता। ओके, सो देन वी आर हैविंग कैसे सेंटेंस फ्रेम होता है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो व्हाट आई वाज हैविंग, हमारा क्या सेंटेंस था, सेंटेंस वॉज राम खाना खाता है, तो अब क्या बन गया, राम खाना नहीं खाता है। सो राम सब्जेक्ट इज अगेन राम, अब राम इज सिंगुलर, उसका जो था वो हमने बना दिया डज, ठीक है। तो नॉट ईट, क्या नहीं खाता वो, food. Okay, so this is how our sentence is complete and this is ram is the subject, do or does हमने use कर लिया, नेगेटिव का not आ गया, eat verb की first form आ गई and food is the object. So this is how our sentence is complete. Next is interrogative sentence. सो इन इंटेरोगेटिव व्हाट डू वी डू, हम इंटेरोगेटिव जब यूज़ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सबसे पहले ले आते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर कहूँ कि आई एम अ गर्ल, उसका क्वेश्चन बनाना हो एम आई अ गर्ल, तो इन द सेम वे दीज वर आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो इनको हमने क्या किया, सेंटेंस की बिगनिंग में ले आए, गॉट इट। तो अब हमने क्या करा, क्या राम खाना खाता है, तो आर सेंटेंस विल बी, सब पहले तो डू और डज में से लगाएंगे, एज आई टोल्ड कि सिंगुलर है राम तो उसके साथ क्या आएगा, डज। तो सब्जेक्ट कौन है, राम, ठीक है। क्या करता है वो, ईट, तो क्या खाता है, ऑब्जेक्ट इज फूड। एंड लास्टली विल बी यूजिंग द क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बिना जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है दैट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट, गॉट इट। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव जैसे वर्ड से ही पता चलता है कि उसमें क्वेश्चन मार्क भी होगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो स्टार्टिंग में आएगा, एंड विल बी हैविंग नॉट ऑल्सो, तो दोनों चीज़ें आएंगी इसमें, गॉट इट। सो नाउ क्या राम खाना नहीं खाता है, ठीक है। तो अब क्या बना, क्या के लिए हमने क्या किया, डू लगा दिया स्टार्टिंग में, ठीक है। सॉरी, राम है सिंगुलर है तो डज, डज सब्जेक्ट है राम, डज राम, अब उसके बाद क्या आना है, नॉट, ठीक है। देन हमारी वर्ब की फॉर्म ईट, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, एंड लास्टली वी आर हैविंग क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, वेरी इजी है, अब या इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। सो सिंपल पास्ट टेंस हमें कैसे पता चले कौन सा है, ये सेंटेंस अगर हिंदी में है तो हम क्या लगाया होता है, हमारे लगा होता है आ ई ए, वह बाजार गया, उसने खाना खाया, मैंने उसे पढ़ाया, ठीक है। तो आ ई ए, ये सेंटेंस के लास्ट में खाया आ लगा हुआ है, तो वह उसने पढ़ाई की ई लगी हुई है, तो हमें पता चल गया ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, तो पहले हमारा सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट जैसे कि सपोज टेक द एग्जाम्पल कि कुत्ता था, कुत्ता सुबह भौंका, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है, डॉग, ठीक है। वर्ब क्या है, बार्क, अब उसकी वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या बनी, बार्क्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, कब भौंका था वो, मॉर्निंग में, बार्क्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो लास्टली वी आर यूजिंग फुल स्टॉप, ठीक है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द
नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट लग जाता है और हमारी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसकी जगह लग जाता है डिड। तो हम डिड सेकंड फॉर्म लगा देते हैं और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में 2 बार सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं हो सकती। तो हम जो पहले वाली वर्ब है उसको, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब के बिना नॉट नहीं लगा सकते, ठीक है। So we need auxiliary verb in the sentence for framing the negative sentence. So हाँ, यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो did, सॉरी auxiliary verb है, that is did। did लगा के उसके साथ हमने verb की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ठीक है। तो क्या 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 कुत्ता सुबह नहीं भौंका, तो did the dog, sorry we are doing negative sentence, the dog did not bark. Okay, so this is our negative sentence. Now we'll be talking interrogative sentence. So how we will be framing interrogative sentence? Interrogative के starting में क्या है, जो हमारा helping verb है, that it will come in the beginning. So did the dog bark in the मॉर्निंग। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, दे आर क्वाइट ईजी, कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ये है कि थोड़ा रूल्स को याद रखना पड़ता है, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सो अब इसमें क्या हो गया, नॉट भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, एंड वन थिंग इज़ ऑलवेज टू रिमेंबर कि डिड के साथ हमारी वर्ब की हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ठीक है। वी नेवर यूज़ वर्ब्स सेकेंड फॉर्म विद डिड, गॉट इट, ठीक है। तो आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे, ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें जिसमें क्वेश्चन डिड के साथ लगा होता है उसका आंसर जो है वो हमेशा हम सेकेंड फॉर्म के साथ लगाते हैं, सॉरी आंसर जो आता है उसमें सेकेंड फॉर्म यूज़ की जाती है क्योंकि हम डिड को हटा देते हैं। नाउ वी आर हैविंग डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स, सॉरी नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सो द क्वेश्चन इज, क्या कुत्ता सुबह नहीं भौंका, डिड द डॉग नॉट बार्क इन द मॉर्निंग। तो हमारे सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया, सीधा नॉट आ गया, गॉट इट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस। सो सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान कहाँ से होगी, हाउ वी विल रिकग्नाइज दैट दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सेंटेंस इन हिंदी विल बी हैविंग गा, गे, गी इन द लास्ट। जैसे वह आज आएगा, वह खाना खाएगा, हम स्कूल जाएंगे। सो यू कैन सी गा गे लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें पहचान होगी दैट इट इज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जैसे सूरज उदय होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है, हु इज़ द सब्जेक्ट हियर, द सन, ठीक है। सन क्या करेगा, राइज करेगा। तो पहले विल और शेल में से एक चूज करेंगे, तो विल, दैट विल बी विल, एंड द सन विल क्या करेगा, राइज। अब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, बस यही बोला हुआ है सूरज उदय होगा, तो द सन विल राइज। अगर लिखा होता ईस्ट से, राइज इन द ईस्ट, पूरब से उदय होगा तो सेंटेंस विल बी द सन विल राइज इन द ईस्ट। नेगेटिव में अब नॉट लगेगा क्योंकि वी आर हैविंग ऑलरेडी द ऑक्सिलरी वर्ब, सो विल बी एडिंग हियर नॉट, द सन विल नॉट राइज इन द ईस्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट वी आर हैविंग विल और शेल, सब्जेक्ट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हमने इसका क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या होगा, तो विल जो होगा वो सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा, विल द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, तो द इन द लास्ट विल बी हैविंग द क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन भी होगा नॉट भी होगा, सो देन विल बी सेइंग विल द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, सॉरी इंटेरोगेटिव में विल द सन राइज इन द ईस्ट, एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव में विल द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। सो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, दे आर क्वाइट ईजी। नहीं समझ आए तो प्लीज़ कीप टेल मी इन द comments. Now we are moving to the continuous form of the tenses. तो continuous जहाँ पे ये word लग जाए हमारे tenses में, उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ing लगाना है। इसको हम present participle भी कहते हैं,
ठीक है। अब हमने ये चीज़ याद रखनी है कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जहाँ पे टेंस में कॉन्टिन्यूअस है उसमें ये आएगा ही आएगा। तो जब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें क्या करेंगे हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट, अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस के लिए तो पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो प्रेजेंट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, दैट इज एम आर। ठीक है, सॉरी, सो इन द in it will be doing the use of is am are। तो अब फॉर प्रेजेंट क्या हम यूज़ करते हैं, प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं इज एम आर, और कॉन्टिन्यूअस के लिए तो ऑब्वियसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। गॉट इट। देन अब जैसे उसकी पहचान कहाँ से होगी कि वह काम कर रहा है, तो रहा का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, रहा का मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो जब वह काम कर रहा है, रहा का मतलब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। है के लिए हम क्या लगा रहे हैं, इज एम आर। तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, सिंगुलर होगा उसके साथ इज लगेगा, प्लूरल होएगा उसके साथ आर लगेगा, और आई के साथ क्या लगता है, एम। गॉट इट। देन वी आर हैविंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और आपको पता ही है कि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या करते हैं, इज एम आर मतलब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग में ले आएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में होंगे एंड सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, एंड लास्ट विल बी हैविंग क्वेश्चन मार्क। गॉट इट। सो नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगेन एज आई हैड टोल्ड, कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसमें जो पास्ट है, पास्ट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, वॉज और वर। तो पास्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे वॉज एंड वर। ठीक है, हिंदी में क्या मतलब होता है, वह स्कूल जा रहा था, रहा था, वह खाना खा रही थी। ठीक है, वह हम स्कूल जा रहे थे, तो था, थे, थी लगा होता है सेंटेंस के लास्ट में, और कॉन्टिन्यूअस के लिए ऑब्वियसली रहा लगा होता है। अब जब हमने इसका सेंटेंस फ्रेम करना होता है तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट। तो अब नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉन्टिन्यूअस अगेन मीन्स वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, विल एंड शेल। जनरली वैसे तो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में भी हमने करा था, बट आई फॉरगॉट टू टेल यू कि विल और शेल को जनरली हम आई प्रेजेंट तो वैसे विल और शेल को, विल को सभी के सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जा सकता है, बट जो शेल है उसको सिर्फ और सिर्फ हम आई एंड वी के साथ ही यूज़ करते हैं। शेल को, विल को आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हो, बट शेल हैज़ टू बी यूज्ड ओनली विद आई एंड वी। गॉट इट। ओके, सो यहाँ पे इसका रूल है। अब यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा था सिंपल फ्यूचर टेंस में कि विल और शेल यूज़ होता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, बट हमारे तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब तो ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे विल और शेल के साथ पहले वर्ब की एक फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, दैट इज बी। ठीक है, तो हमारा रूल भी पूरा हो गया कि विल और शेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बी लगाने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा सकते हैं। गॉट इट। सो दिस इज अबाउट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट टेंस। नाउ परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज टू लर्न दिस थिंग कि परफेक्ट जहाँ पे आ गया उस वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। ठीक है, परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की सिर्फ और सिर्फ कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म। गॉट इट। तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट अब इसका कहाँ से हमें पहचान होती है, सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा होता है, वह स्कूल गया है, वह उसने खाना खाया है। अब देखो सेंटेंस में, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगा होता है, आ है, ई है, ए है। ठीक है,
अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो सिंपल पास्ट टेंस है वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ आ ए ई लगा होता है, मगर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें आ है, ई है, ए है लगा होता है। ठीक है, तो वहाँ से हमें पहचान होती है कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर हैज़ एंड हैव। प्रेजेंट के लिए हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, हैज़ एंड हैव। परफेक्ट का तो हमें पता ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे उसने खाना खाया है, ही हैज़ ईटन हिज फूड। ठीक है, अब हमें ये करना है कि सब्जेक्ट जो होता है वो किस तरह से, सॉरी सेंटेंस जो है वो किस तरह से फ्रेम होता है। ठीक है, तो उसने खाना खाया है, जो सिंगुलर्स हैं, सिंगुलर्स के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़। ठीक है, और प्लूरल्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव। ठीक है, ज़्यादा के साथ बड़ा वाला लगेगा, जहाँ ज़्यादा है तो उनके साथ बड़ा वाला, अकेले के साथ छोटा वाला। गॉट इट। तो परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म ओनली, लास्ट में ऑब्जेक्ट। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, मगर हमने पास्ट भी देखना है, तो पास्ट में क्या होगा, प्रेजेंट वाले का इसको पास्ट फॉर्म कर देंगे, हैज़ एंड हैव का क्या होगा, हैड बन जाएगा सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे अब सेंटेंस है, उसने खाना खाया था, आ था, ई थी, ए थी। ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, एंड देन विल बी डूइंग इट कि ही हैड ईटन हिज फूड। गॉट इट। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर के लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं, विल एंड शेल। गॉट इट। अब यहाँ पे हम परफेक्ट का मतलब हैव, सॉरी, बट हमारा परफेक्ट टेंस है, तो विल और शैल के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते, तो विल बी यूजिंग हैव। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसने खाना खाया होगा। तो सेंटेंस क्या बना, ही विल हैव ईटन हिज फूड। तो इससे हमें पता चला कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और हमने इसमें फ्यूचर के लिए विल शेल लगाना है, और विल शेल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हैव, एंड देन परफेक्ट के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हमें पता है कि जो हमारा परफेक्ट है उसका मतलब है हैज़, हैव एंड हैड। तो पास्ट में हैड होता है, एंड प्रेजेंट में हैज़ एंड हैव होता है, और कॉन्टिन्यूस का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ठीक है, तो अब हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। सो आई टेल यू नाउ, विल बी लर्निंग इट इन डिटेल। तो फ्यूचर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे करेंगे, उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट के लिए लगेगा हैज़ एंड हैव। हैज़ हैव के साथ हम लगाएंगे बीन। ये याद रखना है कि हमारे जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें बीन लगता है, तीनों फॉर्म में बीन लगता है, तीनों टेंसेज में। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव। परफेक्ट के लिए क्या लग गया, वर्ब की, सॉरी, परफेक्ट के लिए यहाँ पे हमने हैज़ एंड हैव यूज़ किया है। ठीक है, एंड बट यहाँ पे हमें ये भी पता है कि हैज़ जो हमारा परफेक्ट होता है उसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी यूज़ हुई है, बी वॉज, बीन। ठीक है, तो बी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ कर दी। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस में हमने क्या लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमें ड्यूरेशन दी होती है कि कितने टाइम में ये काम हुआ। जैसे ही उसने काम, वह सुबह से काम कर रहा होगा, कर रहा है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है। जब टाइम दिया हुआ कि वो किस टाइम से काम कर रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, कि वह सुबह से काम कर रहे हैं, वह सुबह से नहा रहे हैं, तो से आ गया और रहा है लगा हुआ, दैट मीन्स हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, हैज़ एंड हैव। अब सिंगुलर्स के साथ हैज़ यूज़ होता है, प्लूरल्स के साथ हैव यूज़ होता है। तो कॉन्टिन्यूस के लिए ing लग गया। अब सिंस और फॉर किसके साथ लगता है, आई विल टेल यू अबाउट दैट। सिंस तब लगता है जब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम दिया हो। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग, वह इस घर में
2005 से रह रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, एंडिंग भी दे दिया, वो इस घर में अब तक रह रहा है, मतलब 2005 से अब तक यहाँ पे रह रहा है। तो स्टार्टिंग टाइम भी हो गया, एंडिंग टाइम भी हो गया, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, सिंस। अब बताती हूँ मैं, अब जैसे सेंटेंस हो गया, वह 4 घंटे से नहा रहा है। तो अब 4 घंटे तो कोई भी हो सकते हैं, सुबह के 4 घंटे हो सकते हैं, दोपहर के 4 घंटे, ये भी हो सकता है कि वो 9 बजे से नहा रहा हो, ठीक है। ये भी हो सकता है वो 10 बजे से नहा रहा हो, तो टाइम नहीं दी हुआ, बस ये बताया कि वो ड्यूरेशन बताई हुई है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 4, ठीक है। तो वह सुबह से नहा रहा है, ही हैज़ बिन टेकिंग अ बाथ सिंस मॉर्निंग, ठीक है। टाइम दे दिया कि सुबह से अब तक नहा रहा है, ठीक है, वो 4 घंटे से नहा रहा है, ही हैज़ बिन टेकिंग अ बाथ फॉर 4 आवर्स, गॉट इट। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हैड यूज़ करते हैं। आपको पता है पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ किया जाता है, बिन यूज़ की जाती है कॉन्टिन्यूस फॉर्म के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया जाता है, देन सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप, गॉट इट। जैसे ही हैज़, वह सुबह से नहा रहा था, अब यहाँ पे से रहा था आ गया हमारे सेंटेंस की पहचान, ठीक है। तो वह सुबह से नहा रहा था, ही हैड बिन टेकिंग अ बाथ सिंस मॉर्निंग, गॉट इट, ठीक है। वह सुबह से नहीं नहा रहा था, ही हैड नॉट बीन टेकिंग अ बाथ सिंस मॉर्निंग। अगर आपको आगे बताया जाए कि मान लो मार्ली 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा था, द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स, गॉट इट। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट मतलब गा लगा होगा उसमें, ठीक है। तो वह काम कर रहा, वह सुबह से या वो कल शाम से काम कर रहा होगा, ही विल हैव बिन डूइंग वर्क सिंस इवनिंग, सिंस येस्टरडे इवनिंग, गॉट इट। जिसमें कि हमें टाइम दिया हुआ है, जिसमें बताया हुआ है कि कल शाम से, ठीक है। तो कल शाम से मतलब आज तक, तो वो पूरा हमें टाइम दिया हुआ है कि कितने मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। फ्यूचर के लिए विल, एंड कॉन्टिन्यूस के लिए वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इफ़ देयर इज स्टिल एनी क्वेरी, सो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर स्टिल यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट, प्लीज़ डू टेल मी so that I can help you out in this, and we can solve our matter, or we can solve our problems together. So I'll be waiting for the good points or good comments or the problems that you are facing. Thank you and have a nice day. Enjoy your day. Bye bye.